In this question, a uniformly charged large plane sheet has charge density sigma equal to 1 upon 18 pi into 10 to the minus 15 coulomb per meter square. Find the electric field at point A, which is 50 centimeter from the sheet. And the second part of that question is consider a straight line with 3 points P, Q, R. 3 points are given 3 P, Q, and R placed 50 centimeter from the charge sheet. So here this point A is also situated at a distance of 50 centimeter, and all the 3 points are also situated at a distance of 50 centimeter from the charge sheet on right side as shown in figure. At which of these points does the magnitude of electric field due to the sheet remain the same as that at point A, and why? That we need to explain. So here basically in the first part, it is asked to find out the electric field at point A, which is 50 centimeter away from the sheet. So this is the sheet having surface charge density sigma equal to the value of sigma is given this one. So we know that हमें ये मालूम है कि अगर हम एक इनफाइनाइट प्लेन शीट एक प्लेन शीट जो ये यहाँ पे है यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट क्लियर. तो ये जो प्लेन शीट अगर हम लेंगे बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इनफाइनाइट शीट. सो इन्फाइनाइटली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज इन्फाइनाइट शीट अगर हम लेंगे तो उसके वजह से अदर राइट साइड हो या फिर लेफ्ट साइड हो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था. इट इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड हियर ऑल्सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. एंड डायरेक्शन की बात अगर हम करेंगे तो क्या होगा, तो पॉजिटिवली चार्ज जो शीट है उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में राइट साइड की तरफ और लेफ्ट साइड में क्या होगा, इट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट. क्लियर. इट विल बी दैट मीन्स इट विल बी अवे फ्रॉम द सीट. तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. सो वी नो दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट डिस्टेंस. so what we'll be doing, electric field equal to sigma divided by 2 epsilon naught. So finally half sigma, value of sigma is given 1 upon 18 pi into 10 to the power minus 15. This is the value of sigma, that whole into 1 by epsilon naught. Clear. So sigma का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया गया, ये वाला सिग्मा है और यहाँ पे 1 by epsilon naught को ऐसे ही रखा गया. तो 1 by epsilon naught उसका वैल्यू कितना हम लिखेंगे. सो वी नो दैट 1 by value of 1 by 4 pi epsilon naught is 9 into 10 to the power 9. So that means from here the value of 1 by epsilon naught can be written as 4 pi into 9 into 10 to the power 9. Clear. So we are not writing the units now, only we are writing the values. Clear. तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइनली कितना होगा, इट विल बी 1 by 2 into 1 upon 18 pi into 10 to the power minus 15 whole into 1 by epsilon naught is nothing but 4 pi into 9 into 10 to the power 9. So pi will get cancelled out. Okay, this 2, it will be cancelled by 2. So 2 9s are 18. So again 9 will get cancelled out. So finally how much will be getting, so the value will comes out to be 10 to the minus 15, 10 to the power minus 15 into 10 to the power 9. Okay, so it will be around, it will be equal to 10 to the power minus 6. Clear. So electric field is coming out to how much, 10 to the power minus 6, and unit will be Newton per coulomb. Okay, so this electric field here at a distance of 50 centimeter at point A will be how much, 10 to the power minus 6 Newton per coulomb. That will be away from the sheet, that means towards left. Okay, so this is the electric field at point A. This is the answer for first part. And in the second part of the same bit A, it is asked that consider a straight line with 3 points. यहाँ पे बोला गया है एक straight line draw कर लो. So here they have asked to draw one
स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, दिस इज वन स्ट्रेट लाइन। देन आफ्टर दैट व्हाट दे डिड इज दैट दे पॉइंटेड सम पॉइंट्स हियर, दे इंडिकेटेड सम पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। हियर ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पे है। एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसमें तीन पॉइंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि 50 सेंटीमीटर दूरी पर प्रेजेंट है फ्रॉम द शीट। एट विच ऑफ दिस पॉइंट डज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द शीट रिमेन सेम एज दैट एट पॉइंट ए एंड वाई। तो यहाँ पे पूछा गया है जैसे कि ये शीट से लेफ्ट साइड में जो पॉइंट ए है जो कि 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, जो कि मैग्नीट्यूड वाइज है। डायरेक्शन वाइज इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। सिमिलरली एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट एट व्हिच ऑफ दिस थ्री पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा। ये जो तीन पॉइंट है, हालांकि ये तीन पॉइंट एक लाइन पर है बट लाइन का डिस्टेंस यहाँ पे 50 सेंटीमीटर है। लाइन का डिस्टेंस अगर 50 सेंटीमीटर है तो चार्ज जो मतलब पॉइंट क्यू है that will be also almost 50 centimeter distance from the seat. But what about the point P? Point P will not be at a distance, it will be more than 50 centimeter. Point R will be also, it will be more than 50 centimeter. Clear? Because both of them will be forming right angle triangle. So if we calculate, then uh, we'll be getting that value will be something more than 50 centimeter. Clear? So now the thing is that पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सा पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ठीक है, हालांकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कुछ ना कुछ मिलेगा एंड दैट डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स राइट। तो हमें एक चीज़ यहाँ पे तो मालूम होना चाहिए कि जो पॉइंट ए है एंड द पॉइंट क्यू, ये जो दो पॉइंट्स यहाँ पे है, दीज आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, ये एक्सिस पर यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, the central axis which is, it is called this axis is called central axis. Clear? Central axis which is not, which we can define as it is passing through the plane of the given sheet। जो sheet को पास कर रहा है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल एक्सिस। क्लियर? तो ये जो सेंट्रल एक्सिस पर कौन कौन लाई कर रहा है, सेंट्रल एक्सिस पर यहाँ पे पॉइंट ए एंड पॉइंट क्यू ये दोनों लाई कर रहे हैं। क्लियर? तो उससे हम ये बोल सकते हैं एज, और दूसरा भी कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर ये सीट को एक मिरर एज्यूम करेंगे, ए को एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज्यूम करेंगे, तो क्यू क्या होगा, उसका इमेज होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स हियर पी एंड आर विल नॉट बिहेव एज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए, अगर ये हमारे लिए मिरर हुआ। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम इस केस में जो प्लेन शीट है उसका सेंट्रल एक्सिस अगर हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है, तो सेंट्रल एक्सिस पर पॉइंट ए लाई कर रहा है एंड पॉइंट क्यू लाई कर रहा है। ठीक है, भले ये लेफ्ट में प्रेजेंट हो या फिर ये राइट में प्रेजेंट हो। तो सिमेट्री के वजह से क्या होता है, मतलब सेम दूरी पर ये दोनों प्रेजेंट है, तो सिमेट्री की वजह से क्या होगा, पॉइंट ए एंड पॉइंट क्यू पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। तो पॉइंट क्यू यहाँ पे जो कि मोर एक्यूरेट यहाँ पे आएगा। तो where magnitude of electric field due to the sheet will remain same as that point A. Clear? And why does it happen? It happens because what you can say, due to the symmetry. Clear? Symmetry की वजह से यहाँ पे ये हो रहा है। And what about P and R? P and R जो यहाँ पे present है, they are of the symmetry. Clear? That means they are not forming symmetry with A। ठीक है, जैसे A यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, they are of the central axis, they are not on the central axis, they are of the central axis, of the central axis। Clear? So as they are present of the central axis, that's why P and R
विल नॉट बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एट पॉइंट पी एंड आर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम नहीं होगा एज दैट ऑफ पॉइंट ए। हाँ, वैल्यू शायद थोड़ा आसपास आ सकता है बट नॉट सेम। क्लियर? तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, क्यू विल बी द मोर एक्यूरेट आंसर। देन आफ्टर दैट मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, सेकेंड बिट ऑफ द सेम क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला गया है टू स्मॉल आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पीयर्स कैरिंग चार्ज 10 माइक्रोकुलम एंड -20 माइक्रोकुलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो यहाँ पे टू आइडेंटिकल बोला गया है, आइडेंटिकल स्मॉल, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर टाइप्स, सेम साइज का, ठीक है। कंडक्टिंग स्पीयर्स कैरिंग चार्ज, इसका चार्ज है 10 माइक्रोकुलम और इसका है -20 माइक्रोकुलम। क्लियर? व्हेन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, तो डिस्टेंस जो हम लेंगे सेंटर से ही ले जाते हैं, ठीक है। सो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, लेट अस टेक दिस वन एज आर। एक्सपीरियंस है फोर्स एफ इज, तो यहाँ पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एफ, ठीक है। दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड इनटू ए डिस्टेंस ऑफ आर बाई 2, ठीक है। दोनों को फिर पास में लाया जा रहा है और फिर आर बाई 2 डिस्टेंस पर सेपरेट किया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, सो देयर विल बी ए कंडीशन वेयर बोथ ऑफ देम विल बी इन कॉन्टैक्ट, ये दोनों यहाँ पे कॉन्टैक्ट में रहेंगे, ठीक है। जस्ट लेट मी ड्रॉ इट। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट में ला रहे हैं, सो नाउ दे आर इन कॉन्टैक्ट, यस। देन आफ्टर दैट व्हाट विल डू, विल सेपरेट देम वंस अगेन। क्लियर? तो इन दोनों को फिर से सेपरेट किया जा रहा है, उसका मतलब है, तो इन दोनों को पहले तो आर डिस्टेंस पर रखा गया, ठीक है, फिर उनको कॉन्टैक्ट में लाया जा रहा है और फिर उनको हम क्या करेंगे, उनको हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो सेपरेट करेंगे मतलब यहाँ पे ले लेते हैं और दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस कितना होगा, ये मान लेते हैं कि सेंटर से, और ये भी ऐसा ही सेंटर वाला लोकेशन। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं r/2, ठीक है। हालांकि आधा नहीं हो रहा है, इसको हम थोड़ा और पास ले जाएंगे, ठीक है? ये हो गया, ये मान लेते हैं कि r/2, दे आर नाउ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ r/2। सो दिस इज द केस, दिस इज द सिनेरियो, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा डिलीट कर लेता हूँ, ओके फाइन। तो अभी पूछा गया है, अब जो न्यू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वहाँ पे जो फोर्स आएगा, न्यू फोर्स आएगा बिटवीन देम, उसको हमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एफ, एफ के टर्म में हमें उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो पहले तो एफ का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि ये वाला पहला केस में आएगा। तो इन फर्स्ट केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ विल बी कमिंग, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एफ विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, formula is q1 q2 divided by r square। clear? So 1/4 pi epsilon naught q1, what is q1, q1 is nothing but 10 microcoulomb, so 10 into 10 to the power -6 coulomb and -20 microcoulomb, so that means 20 into 10 to the power -6 coulomb, that divided by r square, distance square, okay. So now what we'll be doing, we'll not be doing much more calculations, we'll be leaving that one like this because we need to express this, express the new force, new force over here will be f prime and here the force, let it be f, ठीक है। तो न्यू फोर्स को हम कैसे लिखेंगे, सो न्यू फोर्स विल बी f prime equal to 1/4 pi epsilon naught q1 prime q2 prime divided by r prime square। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे आर प्राइम, यहाँ पे मैं थोड़ा लिख देता हूँ, आर प्राइम का वैल्यू कितना होगा, r/2। क्लियर? एंड व्हाट अबाउट q1 प्राइम एंड q2 प्राइम, q2 प्राइम ये दोनों का वैल्यू कितना होगा। क्लियर? सो यहाँ पे ये दोनों को डायरेक्टली यहाँ पे r से r/2 डिस्टेंस तक सेपरेट नहीं किया गया है,
इन दोनों को पहले कांटेक्ट में लाया गया, फिर उसके बाद सेपरेशन हुआ r/2। तो जब कांटेक्ट में यहाँ पे लाया गया तो इस वाले पर्टिकुलर केस में क्या होता है, व्हेन दे आर केप्ट इन कांटेक्ट, क्लियर। तो व्हाट विल बी द नेट चार्ज, तो नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज विल बी 10 माइक्रोकूलम प्लस -20 माइक्रोकूलम दिस मच। तो नेट चार्ज कितना होगा, इतना होगा, दैट मीन्स इट विल बी -10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो नेट चार्ज कितना होगा, -10 माइक्रोकूलम। देन व्हेन दे विल बी अगेन सेपरेटेड, क्लियर, जब फिर से इन दोनों को हम सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, सेपरेट करने से एज यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, देखो यहाँ पे आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पीयर्स बोला गया है। ठीक है, स्पीयर्स कैसा है, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मतलब जब हम कांटेक्ट में लाएंगे तो नेट चार्ज तो इतना होगा, बट फिर से दोबारा, अच्छा ये जो नेट चार्ज है वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर बॉडी। मतलब ये अभी सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करा है, दिस टू कंडक्टिंग स्पीयर्स व्हेन दे विल बी इन कांटेक्ट। ठीक है, सो दे विल बिहेव एज ए, ओके फाइन, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, ये एक्चुअली पॉजिटिव नहीं होगा, दिस विल बी नेगेटिव चार्जेस, क्लियर, बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे हमें इसको, बिकॉज ओवरऑल नेट चार्ज इज कमिंग टू बी हाउ मच, नेट चार्ज यहाँ पे आ गया हमारा कितना, -10 microcoulomb. So that means all these negative charges will be distributed uniformly over the entire body of the two connected system. So ये अभी सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये कनेक्टेड, दो स्टेप से डिफरेंट बॉडी यहाँ पे कनेक्टेड है, मतलब अभी एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, बट व्हेन दे विल बी सेपरेटेड, वन सेकेंड, थिंक व्हाट विल हैपन, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ केसेस। ठीक है, तो दोनों केसेस में क्या होगा, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो कितना डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सो नेट चार्ज जितना होगा उसका आधा हो जाएगा, दैट मीन्स क्यू नेट डिवाइडेड बाई 2 एंड हियर ऑल्सो क्यू नेट डिवाइडेड बाई 2। सो दैट मीन्स Q1 प्राइम शुड बी इक्वल टू Q2 प्राइम विल बी इक्वल टू, नेट चार्ज कितना है, -10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 2, दैट इज -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो फोर्स को लिख रहा हूँ, फोर्स को मैग्नीट्यूड वाइज लिख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं नेगेटिव साइन यहाँ पे नहीं दिया हूँ। ठीक है, और एल्स अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज यहाँ पे नहीं लिया होता, वेक्टर फॉर्म में, मतलब नॉर्मली विदाउट मैग्नीट्यूड अगर लिखा होता तो मुझे डायरेक्शन वहाँ पे इंडिकेट करना पड़ता। ठीक है, तो उसके लिए आइदर मुझे नेगेटिव साइन देना पड़ता है या फिर डायरेक्शन के लिए कोई वेक्टर फॉर्म में मुझे उसको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी न्यू फोर्स यहाँ पे कितना होगा, न्यू फोर्स विल बी 1/4πε0 Q1 प्राइम प्लस Q1 प्राइम इंटू Q2 प्राइम डिवाइडेड बाई R प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, ये R प्राइम है, उसका स्क्वायर है। सो 1/4πε0 as I am writing this force magnitude wise, so I will be taking magnitude wise the value of charges. So Q1 prime is nothing but 5 into 10 to the power minus 6 coulomb into, this will be again 5 into 10 to the power minus 6 coulomb divided by R prime. R prime is nothing but R by 2. So it will be R by 2 square. Okay. So now what we'll be doing, directly I can take the ratio of these two. Okay. So f prime magnitude wise अगर मैं directly, no need to put the modulus sign, so directly if I will be writing, it will be 1/4πε0 this one value into 5 into 10 to the power minus 6 into 5 into 10 to the power minus 6। यहाँ पे माइक्रोकूलम को कन्वर्ट करने का जरूरत भी नहीं था क्योंकि वो फाइनली कैंसिल हो जाए, बट फॉर क्लैरिटी कि हमें सब कुछ SI में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली एंड दिस वैल्यू डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाय, इट विल बी R square by 4 whole divided by, and this one will be 1/4πε0 new force, and original one is this one, 10 into 10 to the power minus 6 into 20 into 10 to the power minus 6. Okay, so finally 1/4πε0, this whole one 1/4πε0, 1/4πε0 will get cancelled out, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6, 10 to the power minus 6 will get cancelled out,
एंड अच्छा यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं लिखा गया, दैट होल डिवाइडेड बाय दिस वन आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये नहीं लिखा गया था। सो आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर दिस टू विल कैंसिल आउट। सो रिमेनिंग पार्ट जो बचा अभी कितना है बचा, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे 5 5 जा 25, 25 divided by 1 by 4, that means 25 into 4 whole divided by, this is 20 into 10, it will be how much, 200. So finally how much it will be coming, so it will be what you can do, so it will be 100 divided by 200, so it will be 1 by 2. So f prime upon f is coming out to be 1 by 2, that means f prime over here will be equal to f by 2. So what about the new force between the two charges when they are kept in contact and after that they are separated by distance of r by 2? Clear? The new force will be reduced by 2 times, ठीक है, तो न्यू जो फोर्स होगा वो कितना होगा, आधा हो जाएगा. So this will be the answer.